हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पोलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। क्लास 9 के पोलिनोमियल्स में हम लोग सबसे पहले पोलिनोमियल से पहले ये देखते हैं कांस्टेंट्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। कांस्टेंट्स एक ऐसा टर्म या क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। कांस्टेंट्स ऐसा कोई टर्म या क्वांटिटी होता है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। जैसे 2, 3, 5 या हम लोग अल्फ़ाबेटिकली उसको लिख सकते हैं ए बी सी को हम लोग कॉन्स्टेंट्स में रखते हैं। उसी तरह से वेरिएबल एक टर्म या क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू हमेशा वैरी करती है। वैरी करती मीन्स एक्स की वैल्यू कभी 2 आ सकती है, कभी 3 आ सकती है, वाई की वैल्यू भी कुछ भी आ सकती है, जेड। तो इस तरह का कोई भी सिंबॉलिक फॉर्म या सिंबल या टर्म या क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक नया टर्म तैयार होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स सेपरेटेड बाय प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड और all of these 4 operations. An algebraic expression is the combination of variables and constants separated by plus, minus, into or divide or all of these 4 operations. Like we can write x square plus 1 by x square, 2x plus 3, 4y plus 7. Likewise, we can write any of the algebraic expressions. So these are called algebraic expression. Why? Because here we have variables as well as constants. Suppose one is here constant, 2x plus 3. X is variable and here 3 is constant. So likewise these are called algebraic expression. Now let us move to the polynomials. What is polynomial? Polynomials are also an algebraic expression, but there are certain conditions. Polynomials are also algebraic expression, but certain condition it follows. Like an algebraic expression having non-negative integral power. मीन्स क्या हुआ कि ऐसी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री, या कह सकते हैं कि ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का पावर कभी भी नेगेटिव ना हो और कभी भी फ्रैक्शन में ना हो। मतलब क्या हुआ, पोलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव होगी और हमेशा इंटीजर्स होगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज अ पोलिनोमियल। 3x to the power 5 plus 7x plus 3 is also a polynomial. These are polynomial. You may ask, what is the difference between the two? There is a difference. This is also an algebraic expression. This is algebraic expression, but this is not a polynomial. Why? Because 1 by x square, that means we can write 1 by x square can be written as x to the power minus 2. So degree of this x will be minus 2. That's why it is not a polynomial. Also, root under x plus 3 is a algebraic expression, but it is not a polynomial. Why? Because x, root under x means x to the power 1 by 2, which is a fraction. So if the power of variable is fraction or negative, then it is not called as polynomial. That means we can finally say that an algebraic expression is not always a polynomial, but all polynomials are algebraic expression. All polynomials are algebraic expression, but all algebraic expression may not be a polynomial. Now let us see what are the types of the polynomial. So we can categorize polynomial on two bases. One, on the basis of terms, and second one is on the basis of degrees. What do you mean by degree? Degree is the maximum power of the variable of an algebraic expression or polynomial. What is degree? Degree is
the maximum power or maximum exponent of a polynomial is called degree. So on the basis of terms, what are the polynomials? Monomials, only one term, binomial, two terms, trinomial, three terms, and so on. We can proceed. On the basis of degree, what we can write? Linear, a polynomial of degree 1, linear, degree 1, quadratic, a polynomial of degree 2, similarly cubic, degree 3, and also by quadratic we can take degree 4. So on the basis of terms, monomial, binomial, trinomial, quadrinomial, so on. So monomial has only one term like 2x, 3y, 5z. Binomial two terms, 2x plus 3, 4x plus y, only two terms. Trinomials three terms, 2x plus 3y plus 5, x plus 2 plus x square. In case of linear, only degree 1, 2x plus 3, 4y plus 7. So it should have only one degree. Quadratic, x square plus 1, x square plus 1, x square plus 2x plus 3. These are quadratic polynomial. Cubic polynomial, a polynomial of degree 3, x cube. It must have one term having degree 3. And by quadratic, it should have at least one term which degree is 4. So we can write examples also. 2x plus 3, so on. Degree 2, x square plus 3x plus 5. Degree 3, x cube minus 8. Degree 4, x to the power 4 minus 16, 3x to the power 4 minus 7x plus 5, and so on. We can write the examples of the polynomials. So on the basis of terms, on the basis of degree, we can categorize the different polynomials. Now आगे प्रोसीड करते हैं. पोलिनोमियल में जैसा हम लोगों ने देखा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टाइप्स ऑफ द पोलिनोमियल. कुछ और भी पोलिनोमियल्स है, जैसे हम लोग लिखते हैं जीरो पोलिनोमियल. जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल फ्रेंड्स कुछ और नहीं है, बस जीरो को हम लोग जीरो पोलिनोमियल कहते हैं. जीरो को हम लोग जीरो पोलिनोमियल ही कहते हैं क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. सिमिलरली कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो, कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो हो. जीरो डिग्री करने का मतलब हो गया हमारा 2, यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 3, 5, 7. आखिर क्यों हम इसे कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं? क्योंकि और डिग्री क्यों जीरो है? क्योंकि अगर हम 7 को लिखते हैं तो हम लोग 7 को क्या लिख सकते हैं? 7x टू द पावर 0 या 7y टू द पावर, मीन्स इसके साथ जो भी वेरिएबल होगी उसकी डिग्री जीरो होगी. तो x टू द पावर 0 या y टू द पावर 0 1 होती है. तो 7 into 1 हमारा 7 हो गया. तो इसलिए हम इसे कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं. ना हम लोग आगे बढ़ते हैं. जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, ये क्या होती है जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल? फ्रेंड्स कोई भी पोलिनोमियल को हम लोग कैसे लिखते हैं? कोई टर्म के साथ लिखते हैं, लाइक px, qx. दिस इज द way of writing a polynomial. px means polynomial in terms of x, qx means polynomial in terms of x. Similarly, we can write rt means polynomial in terms of t. So likewise we can write. तो जीरो जो पोलिनोमियल मीन्स, अगर हम कोई पोलिनोमियल लेते हैं, सपोज करते हैं px इक्वल्स टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 या x प्लस 2, तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इस पूरे पोलिनोमियल को जीरो करने की टेंडेंसी रखती है? दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल. जीरो पोलिनोमियल मीन्स that value of variable which makes the value of the polynomial as zero. Like what we can put in place of x,
so that it becomes 0. क्या लिखेंगे हम? अगर हम x के जगह पे लिख दें -1/2 तो हमारा क्या आएगा? -1 + 1 = 0. तो ऐसी वैल्यू वेरिएबल की यानी x का हमने क्या वैल्यू लिया? -1/2, तो ये क्या हो गया? हमारा 0 हो गया. सिमिलरली इस केस में हम देखते हैं x की वैल्यू अगर हम -2 पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0 होगा. तो जो वैल्यू हम वेरिएबल की जगह पर प्लेस कर रहा है उसके बाद अगर हमारा वैल्यू 0 आ रहा है, दैट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड 0 ऑफ द पोलिनोमियल. लाइक इन फर्स्ट केस the 0 of the polynomial is -1/2 and in second case 0 of the polynomial is -2 because that value makes the whole polynomial as 0. तो 0 of polynomial means क्या हो गया कि ऐसी वैल्यू जो पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे. फ्रेंड्स सपोज करते हैं कि हमें 0 ही नहीं पता चल रहा, हम कैसे निकालेंगे 0? सपोज करते हैं हम ऐसा कोई क्वेश्चन लेते हैं. जनरली प्रॉब्लम होता है कि सर आपने तो प्लेस कर दिया, निकल गया. अगर हम यहाँ पे वैल्यू की बात करें तो एक और चीज हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि जो डिग्री होती है मैक्सिमम, जितनी इसकी डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम उतना ही 0 इसका पॉसिबल है. अब इस केस में सपोज करते हैं हमें नहीं पता चल रहा कि 0 क्या होगा इसका. तो फ्रेंड निकालने का आसान तरीका मैं बताता हूँ. इसको हम अपने मन से क्या करते हैं? 0 पुट कर देते हैं इस पॉलिनोमियल को. अब इसे ब्रेक कर लेते हैं. -2x - x + 2 = 0. तो हमारा क्या आता है? x - 2 × x - 1. तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे x की क्या वैल्यू होगी? x की वैल्यू हमारी आ जाती है x = 2 और 1. तो अगर हम इस 2 को इसमें पुट करके देखते हैं तो 2 पुट करते हैं तो क्या होता है? 4 + 2 6 और 3 2 6 6 - 6 0. तो अगर किसी पोलिनोमियल का हमें 0 निकालना हो तो हम क्या करते हैं? अपने मन से उस पोलिनोमियल को 0 कर देते हैं और हम लोग चेक करके बता सकते हैं कि उसकी 0 क्या होगी. इस तरह से हम 0 भी निकाल सकते हैं. बट 2 और 1 जो हमारा क्या है कहलाएगा? इस पोलिनोमियल का 0 कहलाएगा, क्योंकि जब हम 2 और 1 पुट करेंगे x के जगह पे तो हमारा पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा. तो इसे हम कहते हैं 0 ऑफ द. नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग. रिमाइंडर थ्योरम. Let Px be a polynomial of degree greater than or equals to 1 and let a be any real number. Px कोई polynomial है और a हमारा कोई भी real number है. Then Px is divided by the linear polynomial x minus a then remainder is Pa. This is the statement of the remainder theorem. Let us make it clear. Px अगर हमारा कोई polynomial है, मान लेते हैं Px एक पोलिनोमियल है, सपोज करते हैं x² - 2x + 3. x² - 2x + 3. तो अगर इसे हम डिवाइड करते हैं, इज डिवाइडेड बाय x - 2. सपोज इट इज डिवाइडेड बाय x - 2. देन first we will find the 0 of this polynomial x - 2. 0 of this polynomial x - 2. What will be the 0 of x - 2? That will be 2. So when we put 2 in place of x, what we get? 4 - 4 0 = 3. This value is called remainder. Remainder when x² - 2x + 3 is divided by x - 2. तो जिस टर्म से हमको डिवाइड करना है, जैसे x - 2 से डिवाइड करना, उसमें पहले हम 0 निकालेंगे, उसकी 0 निकालेंगे. उस 0 को जब हम इस पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा पोलिनोमियल का, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर ऑफ दिस पोलिनोमियल. तो बिना लॉन्ग डिवीजन किए हम बता सकते हैं कि एक पोलिनोमियल को जब दूसरे उससे छोटे वाले पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर थ्योरम. फ्रेंड्स, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है. थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम में हमारा कोई भी वैल्यू आ सकता है x का, कोई भी वैल्यू हमारा इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? जैसे हमने यहाँ पे 2 लिया था तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 3. तो जब कोई भी वैल्यू आता है तो हम उसे रिमाइंडर कहते हैं. दिस मे बी 0, दिस मे नॉट बी 0. ये 0 भी हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है. बट इन केस ऑफ फैक्टर थ्योरम, when one polynomial is divided by another polynomial, then the remainder will come as 0.
So what is the statement? Let Px be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be any real number, then there are two cases. X minus a is a factor of Px if Pa equals to 0. Means अगर हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, अगर हमारा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी फैक्टर है. और अगर Pa इक्वल्स टू 0 इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ Px. तो दो केसेस यहाँ पे कि अगर हम फैक्टर बोलते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता तो हम उसे फैक्टर कहेंगे. लेट अस टेक एन एग्जांपल. Px equals to 5x square minus 6x minus 1. Suppose 5x square minus 6x minus 1 is divided by we can take any value x minus 1, make it plus 1. When 5x square minus 6x plus 1 is divided by x minus 1. So what will be the 0 of this x minus 1? That will be 1. So when we put x equals to 1, what we get? 5 into 1 square minus 6 into 1 plus 1, that is 5, 1, 6 minus 6 equals to 0. Here the remainder is 0. So when remainder comes at 0, then we can say clearly that x minus 1 is a factor of the given polynomial Px. If remainder is 0, when 5x square minus 6x plus 1 is divided by x minus 1, then this gives 0 as 1. Then we put 1 in place of x, we get 0. If we get 0, then only we can say that x minus 1 is a factor of 5x square minus 6x plus 1. And if it is not 0, then we can say that it is not a factor of the given polynomial.